Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you. And I am Dr. Sanket Gupta, and on behalf of AKG's OVMs, I welcome you all to this scientific session and 1 hour of health talk on lifestyle diseases and homeopathy, to be taken over by a very senior and renowned homeopathic doctor and my father, Professor Dr. A.K. Gupta. Uh, I thank you, KG sir, for your presence on a very short notice, even though you had to make a lot of arrangements for this. I would request you to please come on the dais, sir. And I'll also request Dr. A. Gupta to please come on the dais. We'll be shortly having Brigadier SP Tripathi with us as well. He's stuck in traffic. We'll proceed with the session, and I'll ask Dr. Nakul Parashar to please compare and take us with this journey. Dr. Nakul Parashar is, he's the founder of Shanti Care Foundation and is very closely associated with OVMs and Dr. A.K. Gupta for a very long time now. And he's been very great support for us in, in treating a lot of, helping a lot of cases of MND and patients all over the world. So he's a dear friend of Dr. A.K. Gupta and a very staunch supporter of homeopathy, and no better person to talk about him and the respected people on the dais. Namaskar, a very good evening to all of you. Gives me a great pleasure to be here with all of you, and particularly for this topic, which I think all of us at some point in time have been struggling with. Anyway, to cut the long story short and to get started, may I request Dr. A.K. Gupta to please welcome Professor K.G. Suresh with a bunch of flowers. Please also come. Sure. Great. So I'm also very happy to tell you that in this August gathering, we have Dr. Madhavananda Kar, who is the Director General of AIIMS Bhopal and AIIMS Darbhanga, a role that he's managing simultaneously at this point in time. Dr. Kar, welcome to this gathering. May I request Dr. Sanket Gupta to please present a planter to Dr. Madhav. Oh, yes, certainly. I'm holding Professor K.G. Suresh's planter at the moment because we are waiting for Brigadier Tripathi to also come. So, anyway. Yeah. Tripathi sir, may I request you to come on the stage, please? May I request Dr. Sanket to please welcome Mr. Tripathi with a bunch of flowers, shawl, and a present. Right. Hello, sir. So, Dr. Sanket, we would like to also welcome Lieutenant General Mukesh Chadha, who is here with us.
With due permission. Thank you for being here. Thank you. Well, I know we've got a esteemed guest out here on the dais. Professor K.G. Suresh doesn't need an introduction, not because he's currently the director of Indian Habitat Center, but also has donned many leadership caps in his life and career, and was up until now was the Vice Chancellor of the Makhanlal Chaturvedi University of Journalism at Bhopal, and above all, he was also the DG of IIMC, Indian Institute of Mass Communication, for a long time. And in those days, earlier days, I would say, our days, I would say, he was the person who actually transformed entire PTI. So I think Dr. Suresh presence here, out here, makes a lot of sense, because he has been a great supporter of not only of homeopathy, but also about lifestyle disorders. Professor Suresh, we are extremely thankful for having taken out time and being with us today, despite all his programs. So before we proceed, I know he might have to leave in the middle, so we won't let him go before hearing few words from him. Professor Suresh, we need your blessings for this program to be more successful. Over to you, sir. Thank you, Dr. Nakul Parashar ji, my friend. A very dear friend and somebody who is like my elder brother, Dr. A.K. Gupta, Brigadier Tripathi, Professor Madhavanand Kar, Lieutenant General Mukesh, my friend Murtaza, and all esteemed members of the India Habitat Center who are here, and the distinguished audience. Very good evening to you. I don't know where to start. I've known Dr. Gupta for several decades. I keep telling some of my friends that it is believed that homeopathy started from Germany. And if a homeo doctor in India has got German patients who sponsor his air trip to Germany to treat the German patients, it's like taking coal to Newcastle, and that's what Dr. A.K. Gupta does. I've been a great, as Dr. Parashar said, been a great vociferous, supporter of integrated medicine or holistic medicine for a long time. Could be because I hail from a state, that's Kerala, where Ayurveda has dominated. Even today, people's first preference for treatment is Ayurveda. Then only they go to allopaths. So maybe it came naturally that, we don't look at any pathy as a substitute for the other. There are medical emergencies when obviously you have to go to the allopathy. But to dismiss homeo as placebo, Ayurveda as non-consequential, would be living in a fool's paradise. You are not aware. That clearly means for thousands of years, and in the case of homeopathy for hundreds of years, whether it is homeo, Ayurveda, Siddha, Unani, these have immensely contributed to healthcare systems of our peoples for centuries. And thankfully, the government of the day has realized it. They have started the Ayush department, which talks about Ayurveda, Unani, Siddha, homeopathy, and other alternative medicines, in which you include yoga and everything, But long back, when the governments of the day were not actively into this, Dr. A.K. Gupta was among the pioneers who, despite being a homeopath, usually I see among the practitioners of
a particular system of medicine and aversion for the other system. To say that, no, that's all inconsequential, that this is the only, way. As against this, Dr. Gupta started in his clinic the AKG OVHAMS, the Om Vidya that's named after his parents. I was fortunate to have seen them and sought their blessings. And in their memory, he started that clinic, and this was for Om Vidya Institute of, holistic medicine that he started. So there you had under the same roof, homeo, Ayurveda, allopathy. So doctors from these three, it's not that they used to sit in separate rooms. So if a patient came, all the three, they used to consult each other. Something that is now being integrated even into the medical courses. Even in MBBS now, today, it has become an integral part. That you should know the basics of the other systems. So that dismissing the entire thing as bunkam, that thought process itself has now undergone major changes. And Dr. A.K. Gupta was one of the pioneers of that. Having said that, I must also say that, I personally and my family members have been beneficiaries of homeo treatment. And in certain cases where allopathy just could not deliver, I can say that homeo has worked. I'm not saying for everything it works. It's my personal experience. And I know of many of my friends who swear by homeopathy, their first choice is homeopathy. But at India Habitat Center, ever since I have joined, we have tried to give a lot of importance on health-related issues. I'm sure some of you members would have been coming regularly to the monthly program, the MOU that we have signed with HEAL Foundation. Every month, even a couple of days back, there was a session. It's preceded by a health camp and followed by, a discussion on very important issues of health. And one of this was recently we discussed the blue zones, for example. Now, blue zones areas where people live beyond 100 years, So, even about blue zones concept, we discussed here in this very Gulmohar hall. And we are discussing various aspects of medicine. Curative, preventive. And just on 18th of December, we had a talk by Dr. Gulati from the All India Institute of Medical Sciences on strokes, on brain strokes, on symptoms, awareness. The whole idea was that, because as Nakulji said, though I was in the midst of so many, things, I was not aware when my mother was hit by, brain stroke. I just did not know that there was a problem like brain stroke. I only knew about stroke meant heart attack. So when the so-called educated people like us, we are not aware of these diseases, that means the kind of vacuum, so much of work remains to be done. So that's why we decided to intensify this, and even as part of our member meetings now, we are having a lot of doctor members who are now, holding sessions on different aspects, epilepsy and, a lot of other problems. The whole idea is that an aware society would be able to respond much better, For example, the other day Dr. Gulati was saying that we should be knowing that when we are affected by stroke, first, what are the symptoms, and two, to take them to the hospital where these basic facilities are there. So we should be aware that do they have the basic care, or do we just take them to the nursing home next door? Because immediate relief is required. If immediate attention is not given in the first couple of the golden hours, then they won't benefit. So this awareness is very important, is the key to good health. Now, the last point that I would like to make is that we are also now trying to, promote a lot of
health consciousness. I know it does not make business sense for somebody running Habitat to talk about health food and all that. I'm running 4 restaurants, I have to ensure that they succeed. But let me assure you that we are beginning with coming January 1st onwards, we are going to have calorie count on the table for, with every menu card. So you would know what you are eating. So from 1st of January, we will have it. We thought that let you all enjoy the Christmas and New Year. After that, start counting your calories. That is the whole idea. So calorie count would be there. We are going to introduce a segment called healthy foods. That is also going to be, so that alternative, so it should not be that on the one hand we are having this talk and on the other hand, we are giving only the fast food and stuff like that. There is a demand. So long as that demand is there, we do cater to it, but we are going to promote that also. But as I said, that I have to actually go for another event. So I sought permission from Dr. Saab. I will just listen initially. Lifestyle disorders, as I said, that it's all at the end of the day about the lifestyle that we lead. And homeo can play a very critical role in it. And from a homeopathy perspective, because everybody comes with a perspective, some people say yoga all the time, some people say exercise, but where is that balance, particularly for people in the, working people like us, where do we strike that balance? How do we go about it? I'm sure you all have a lot of queries. So after Dr. Gupta's initial remarks, I think we should throw open the floor for questions. That is most important. I realized that day also after Dr. Gulati's talk that he spoke for about 45 minutes, but for 1 hour there were questions. So, because everybody would, like to know about how it is going to impact their lives. So, thank you, Dr. Gupta, for agreeing to come here and addressing them, because I felt that it's only one perspective of medicine that was, our members and others were listening to. They should have another perspective. We will have an Ayurveda perspective also, a Unani perspective also. These all would be coming in the coming days. I hope that you will benefit from it. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. And I always relish when he's here on the dais, when he speaks. And I think he's always been blessed by Ma Saraswati. And his concatenated ideas flow has been remarkable. So thank you so much, Professor Suresh. Before we move ahead, I'll quickly read out a small profile of Brigadier S.P. Tripathi. But before this, I would like to thank you, Lieutenant General Mukesh Chanda, for having introduced Professor Tripathi. And so, as they say, गुरु से मिलाने गोविंद से मिलाने के लिए गुरु बहुत important होता है. So I think thank you so much, Professor Lieutenant General Mukesh Chadda ji. Here's a small profile of Brigadier S.P. Tripathi, VSM, and he's a PhD as well. Brigadier Tripathi is a distinguished Army officer with 31 years of strategic logistics, operational planning, and military administration. A recipient of the Vishisht Seva Medal and 2 GONC INC commendations. He has served across critical operational zones including Kargil, Kashmir, the Northeast and the border sectors. An alumnus of the NDA, IMA, DSSC, Wellington College of Defense Management, he holds a PhD in Strategic Logistics Management along with Master's qualification in Defense Studies, Management, HR, Supply Chain and Multimodal Transport. He has held key leadership roles as Colonel Administration of Counter-Insurgency Force at Srinagar, Commanding Officer in Assam, Director Planning at Army Headquarters, and currently serves as the Deputy Director General, Perspective Planning and Operational Logistics at the Army Headquarters, New Delhi. Renowned for his strategic insight, leadership acumen, and contribution to the defense preparedness, Brigadier Tripathi plays a pivotal role in India's national security framework. What a career. I mean, I feel very elated to have read this. So, Brigadier Tripathi, may we request your kind words before we get into with Dr. A.K. Gupta's lecture. Over to you, sir. Thank you so much. You're welcome, sir. Thank you so much, Dr. Saab.
Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Dr. A.K. Gupta, esteemed guest, Lieutenant General Mukesh Chadha sir, Ati Vishish Seva Medal, Sena Medal, Vishish Seva Medal. We are delighted to be part of this wonderful event. And as the heading goes, lifestyle disorders and homeopathy, nothing much I can elaborate upon. It is self-understandable. As far as Dr. A.K. Gupta is concerned, his repute, he is very highly reputed person, highly awarded, and is running a very successful homeopathy clinics around Delhi, and also visiting abroad, seeing the patients abroad. It is a matter of great privilege and honor for me to be sitting on the dais along with Dr. A.K. Gupta. Thank you so much, sir, for honoring me, giving me this opportunity. I'll not take much time. I'll just hand over to Dr. A.K. Gupta now so that we may benefit from the wisdom of his words. And also I must tell you that I've attended at least 3 to 4 webinars conducted by Dr. A.K. Gupta on Sundays, mostly on Sundays. Very educative, very informative, and life-changing the webinars were. And I'm sure whatever he has to say about lifestyle disorders today will take us, will empower us and educate us in the right spirit. Thank you so much, sir. Thank you, sir. You've all actually done my job, so won't taking much of your time. May I request Dr. A.K. Gupta to take over the stage and deliver his keynote lecture. Yeah. Very good evening to all of you. And I'm really feeling indebted to Professor K.G. Suresh, who had changed his program from 4:30 train to 11:30 train just because of attending this program. I'm so thankful. As well as, I think we need not to talk much about him. He is a well-known personality. Brigadier Tripathi, he has already been, Dr. Nakul Parashar has told us. And we have the privilege of having Director General as well as the Lieutenant General Mahesh Chadha sir also here, and Dr. Madhavan Kar, which is a galaxy of people I am having here. That's a real honor for me. Thank you very much. Now, coming to my topic, lifestyle disorders and homeopathy. आज से पहले हम लाइफस्टाइल की बात करते थे तो पहले ये होता था कि कोई बंदा बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ी अच्छी गाड़ी में जा रहा है, अच्छी घड़ी पहनी हुई है और अच्छे गॉगल्स पहने हुए हैं, रेबन के वो पहने हुए हैं, क्या लाइफस्टाइल है यार इसका. दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू टॉक अबाउट. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब लाइफस्टाइल का वो एक दौर था और आज एक दौर आ गया है जहाँ पे लाइफस्टाइल को दूसरी तरह से देखना पड़ रहा है. बिकॉज lifestyle disorders is a poisonous, regular poisonous which we cater every day in our comfort. आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है वो ये हो गया डिसऑर्डर की फॉर्म में. लाइफस्टाइल डिजीज ग्रो स्लोली एंड होम्योपैथी वर्क्स gently but deeply. That's what the homeopathy is, and we say homeopathy ensures health safely. इसीलिए हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ होम्योपैथी को जोड़ने की कोशिश करी है, जहाँ पे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपयोगिता को समझ सकें. बिफोर वी टॉक ऑफ द डिजीज़, आई थिंक वी शुड नो व्हाट इज़ हेल्थ. क्योंकि अगर हमें हेल्थ का ही नहीं पता तो बीमारी का पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए हेल्थ के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल हेल्थ क्या है. पहले कहा जाता था कि सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को ही हेल्थ मानते थे, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डेफिनेशन हैज चेंज्ड. इवन द WHO has also have changed its definition. The health is considered the complete harmony of mental, physical, emotional, and nowadays called spiritual also. The harmony between all these things, and if you have these
combo of all, then only we could say that is a good health. और आज की डेट में माइंड, सोल एंड स्पिरिट, आप टीवी खोलो, रोज़ ध्यान है आपको चैनल, कोई ना कोई एक चैनल में आपको कोई किसी के प्रवचन आते हुए दिखते हैं, किसी वो दिखते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वो अपने आप में सफिशेंट नहीं है. तो इसलिए वी नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. एंड वेल-बीइंग इज अगेन अ फीलिंग, जिसको हम कहते हैं कि आप कब अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हो और कब महसूस नहीं कर रहे. तो इसलिए सबसे पहले जो फीलिंग आती है, दैट कम्स फ्रॉम योर माइंड. यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. द डिजीज को कहते हैं डिस एट ईज. यू आर नॉट एट ईज कैन लीड इन टू अ पोर्शन ऑफ डिजीज. पहले अनफॉर्चुनेटली पहले ये होता था, जब तक लोगों को पता चलता था कि बीमारी, कुछ डिस्कम्फर्ट लगता था तो कहते थे कुछ नहीं, टेंशन है, आपने आज ज़्यादा खा लिया होगा या ज़्यादा सो गए होगे या ज़्यादा काम कर लिया, इसलिए हो रहा है, ठीक हो जाएगा अपने आप. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ दिन रहते फिर डॉक्टर के पास जाना शुरू हुए. फिर पहले लोगों ने अपने आप दवाइयाँ लेनी शुरू करी, फिर डॉक्टर के पास जाना. डॉक्टर ने देखा तो उनको लगा कि हाँ कोई तकलीफ़ तो है, इसलिए आप टेस्ट करा लो. टेस्ट में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. आई मीन यू गिव मल्टीविटामिन या कुछ ताकत की वो ले ली. और बट जो डिस्कम्फर्ट था वो यहाँ पे था, जो इच जिसे कहते हैं मेंटल इच, कि जहाँ पे आपका डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ वो कारण ख़त्म नहीं हुआ तो वो आपको तंग कर रहा है. अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपकी पड़ोसी के गाड़ी हर बारी आपके घर के आगे खड़ी हो जाती है एंड यू टेल देम 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, वो नहीं होता, बारी बारी रहती है, देन इट्स अ थिंग विच इज़ कॉजिंग यू इरिटेशन. अब आपने 1 बारी प्यार से बोल लिया, 2 बारी प्यार से बोल लिया, 1 बारी लड़ झगड़ के बोले, 1 बारी पुलिस भी बुला ली, हुआ कुछ भी नहीं. अब वो जो डिस्कम्फर्ट है उसकी वहाँ पे ब्लड प्रेशर की फॉर्म में आना शुरू, तब सिर दर्द होना शुरू हो गई, नींद पूरी नहीं आ रही, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स एंड यू गो टू अ डॉक्टर. हाँ जी, आपको तो ब्लड प्रेशर है. जब वो ब्लड प्रेशर चेक करा, ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर भी दी आपने, तो ब्लड प्रेशर तो नीचे आ गया पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि प्रॉब्लम तो कहीं और थी. तो इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट वी आर ट्रीटिंग, आर वी ट्रीटिंग ओनली द डिजीज़ इन द मैन और वी नीड टू ट्रीट द मैन इन हु इज़ हैविंग अ डिजीज़. तो ये इसलिए जो होम्योपैथी का बेसिक एस्पेक्ट है वो ये है, वी ट्रीट द मैन हु इज़ हैविंग अ डिजीज़. अगर ये कहा जाए कि मेरे को लिवर की प्रॉब्लम है इसलिए मेरी तकलीफ़ है, तो लिवर इम्पॉर्टेंट नहीं है, लिवर आपकी वजह से है. यू आर नॉट देयर बिकॉज ऑफ द लिवर, सो यू नीड टू बी अंडरस्टूड. और इस अंडरस्टैंडिंग को पूरा करने के लिए होम्योपैथी कम्स एट द टॉप. अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें वेलबींग में क्या है, यू शुड बी फीलिंग फिजिकली फिट. आपको जब उठ रहे हैं कोई तकलीफ नहीं हो रही, इमोशनल बैलेंस, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, और आपकी जो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द फैमिली, with your people, with your peer group, that is at in a harmonious condition. You feel you are blessed and you are healthy. What is lifestyle? जैसे मैंने शुरू करने से पहले कहा कि हमारे पहले टाइम में लाइफस्टाइल का मतलब कुछ और था. आज की डेट में इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है कि जो you are not able to cope up with your physical, psychological, social and economical environments ऑन ए डे टू डे बेसिस, जब आप उसमें वो नहीं कर पा रहे तब डिसऑर्डर होना शुरू होता है. एंड विच नीड्स द मोटिवेशन, नीड एंड वांट्स, एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज कल्चर. आपने बहुत जगह देखा होगा कि कई जगह में सोसाइटीज़ हैं, दे आर वेरी हेल्दी, क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है, वो किसी चीज़ को उस लेवल पे लेके नहीं जाते. फिर फैमिली बैकग्राउंड, कुछ फैमिली में कुछ हमारे खासतौर पे नॉर्थ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं कि फैमिली की जो टाइप्स हैं
वो पहले जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली के बाद आज की डेट में बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियर फैमिली हो गई, न्यूक्लियर फैमिली फिर उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। जॉइंट फैमिली की अपनी प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर फैमिली की अपनी प्रॉब्लम है। तो इन नटशल नोबडी इज कंसीडर कि यार हम खुश हैं। जॉइंट फैमिली में थे तब प्रॉब्लम होती थी, आज अकेले हैं तब भी प्रॉब्लम है। और खुशी को ढूंढने के लिए इफ़ वी गो एंड बाय सम मेडिसिन कि हम ये दवाई खरीद लें या वो दवाई खरीद लें हमें खुशी मिल जाएगी या हेल्थ मिल जाएगी, तो इट इज़ ऑल्सो अ बिग भ्रम जिससे हमें बाहर निकलना ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम निकल आएँ उतना अच्छा है। Lifestyle, how the lifestyle gets expressed by your activities, what we do daily। आज हमने पूरे दिन क्या करा, इंटरेस्ट, हम किस चीज़ में अपने आप को बिजी रखते हैं, हमें किस किस चीज़ में रुचि है या हमें किस चीज़ में मज़ा आता है। वैल्यूज़, व्हाट मैटर्स मोस्ट। अब यहाँ पे जब हम जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग उतने ख्याल, किसी के लिए पैसा सब कुछ है, किसी के लिए दोस्ती सब कुछ है, किसी के लिए भाई बहन का रिलेशनशिप या माँ बाप का रिलेशनशिप वो सब कुछ है, और किसी के लिए ये सब कुछ चाहिए फिर भी खुश नहीं है। तो ऐसा भी है। और एटीट्यूड, वही जैसे मैंने कहा कि एटीट्यूड आपका ऐसा कि आप कुछ भी कर लो मज़ा नहीं आया, अब कब मज़ा आएगा ये पता नहीं। तो ओपिनियन और व्यूज़, जैसे हम लाइक मेरे को बस वो मिल जाए, आई विल बी हेल्दी, आई विल बी हैप्पी। जब वो मिला तब तक उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, उसकी नीड्स चेंज हो गई, इसलिए वो फिर हैप्पीनेस का एक स्टेप और आगे चला गया। जिसमें आज की डेट में इनकम एलोकेशन वाली जो बात कर रहा हूँ वो उसमें आता। बस मेरी अगर आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन 1977, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे गवर्नमेंट की जॉब्स खुली थी, डिस्पेंसरी खुली थी, जिसमें 700-800 रुपीज़ वॉज द सैलरी। और पीपल वुड से कि यार हमारी 4 फिगर सैलरी हो जाए ना बस फिर तो मज़ा ही है, सिर्फ 4 फिगर उस टाइम पे। और इंसिडेंटली मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका था और मेरी टोटल कलेक्शन वॉज 265 रुपये। आई एम शेयरिंग समथिंग वेरी स्ट्रेंज बट monthly, that was for the month, 265 rupees for the 1 month। और फिर भी मेरे को भी जॉब की ऑफर आई थी, आई डिड नॉट गो। रीज़न बीइंग आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन कि मैं अगर अच्छा करता हूँ तो भी मेरे को 800 मिलेंगे और बुरा करता हूँ तो भी 800 मिलेंगे। तो आई सेड इट डजंट, अगेन टेम्परामेंटल एटीट्यूड की बात है। मैं अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे को 800 से ज़्यादा मिलना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं करता मेरे को 800 भी क्यों मिल रहे हैं। तो आई डिड नॉट गो फॉर इंटरव्यू। एंड ऑन दी अदर हैंड पीपल सेड कि अब तो हमारी 27 जॉब निकली थी, एक ही रहे, मतलब कम हो गई, वो तो अजय को मिलनी है, क्योंकि माई ब्रदर वॉज देयर टू कम एज फॉर द इंटरव्यू। और जब मेरे को ये पता लगा कि माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू कम फॉर, तो अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं आऊँ, एंड आई डिड नॉट गो। एंड कैन यू बीट इट कि आई हैड अ प्रॉब्लम एट माई हाउस। लोग बाग तो वो करते हैं, क्या करते हैं, मतलब किसी तरह से हमें कुछ वो मिल जाए कि अप्रोच लगा रहे हैं, तेरे को तो भली घड़ी नौकरी मिल सकती थी। मैंने कहा यही तो रोना है, अगर मिलती तो कहा जाता भाई की वजह से मिली, और नहीं मिलती तो कहता साला इतना बेवकूफ़ है कि भाई को होते हुए भी नहीं मिली, या इन भाइयों की आपस में बनती नहीं, जिनमें से कोई भी बात ठीक नहीं थी। और honestly speaking, what I say that what I'm here is due to my parents as well as my brother who had taught me and who has been my teacher also। तो ये एक एटीट्यूड की बात है, आपको कहाँ पे अपने आप को फिट करना है। Lifestyle disorders are not accidents or fate, they are consequences of daily choices। अब हम जैसे अभी ब्रिगेडियर त्रिपाठी ने बताया कि रास्ते में आते गॉट एन एक्सीडेंट, दैट वाज एन एक्सीडेंट विच वाज नॉट अ चॉइस। पर जो लाइफस्टाइल की वो आती है प्रॉब्लम, उसमें चॉइसेस की वजह से वी लैंड अप देयर कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कितना खाना है, कितना नहीं खाना। तो अगर हम इस चीज़ों का ध्यान रखें तो परहैप्स वी कैन सेव आवरसेल्फ टू अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। और आजकल अगर ये मैं कहूँ कि जितनी भी डिजीज़ हम देखते हैं अदर देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़,
80% of those diseases are due to your faulty lifestyle, which includes neurological, respiratory, cardiovascular, metabolic, musculoskeletal, कैंसर एंड ओबेसिटी, जिसके अंदर अल्जाइमर भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, रेस्पिरेटरी में सीओपीडी, एस्थमा, कार्डियोवास्कुलर में स्ट्रोक. अभी आई मीन प्रोफेसर सुरेश साहब बात करते हैं वो ब्रेन स्ट्रोक की, यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट स्ट्रोक. एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में लाइक यू हैव गॉट अ डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज विच इज़ अगेन वेरी कॉमन, एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर डिजीज एंड रीनल डिजीज़. रीनल डिजीज़ में जो आज की डेट में आप मेरे ख्याल से शायद ही कोई फैमिली ऐसी बची होगी जिसमें कोई डायबिटिक ना हो. दिस इज़ बिन द सिनेरियो. और अगर डायबिटिक है और काफ़ी टाइम से चल रही, बिकॉज डायबिटीज़ रन इन द फैमिलीज़, तो उनमें से काफ़ी पेशेंट्स दे टर्न आउट टू बी अ किडनी पेशेंट, क्रॉनिक रीनल फेलियर, एंड डायलिसिस हैज़ बिन इंक्रीजिंग डे बाय डे. फिर कैंसर इज़ अगेन अ डिजीज़ विच इज़ बिन इंक्रीजिंग in leaps and bounds due to again faulty things. Technology made life easier. Unfortunately, it also made us immobile. When we talk of immobile, mobile की बात ध्यान में आती है, but this is not that mobile. This is immobile when we are not using. We are using ourselves because everything is like this is a remote. हर चीज़ के लिए आपको आई मीन सुविधा है. आप पर्दे भी नहीं हिलाना चाहते. पहले देयर वाज अ टाइम आपके पास ये सब नहीं था. कोई घंटी बजाता तो उठ के बाहर जाते थे आप वहाँ पे, और वहीं से बटन भी दबा दिया, गेट भी खुल गया. अभी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लग गई, सबके लिए. मतलब यू डोंट हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी. तो वो जितनी सुविधा हम अपने लाइफ में लेते जा रहे हैं, उन्हीं का परिणाम है कि हमें कहीं ना कहीं उसको भुगतना भी पड़ रहा है. तो लाइफ डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं आप ये देख सकते हैं, जिसमें कि कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज़, अदर एनसीडीज, डायबिटीज़ और फिजिकल स्मोकिंग और अनहेल्दी डाइट्स. द बॉडी डज नॉट फेल सडनली, इट नेगोशिएट्स क्वाइटली फॉर ईयर्स. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि ये एकदम से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या डिजीज़ नहीं होती. वो हम अपनी आप को धीरे धीरे उसमें चल रहे हैं, एंड देन इट कम्स ऑन टू दैट काइंड ऑफ अ डिजीज. हम फोन की बैटरी लेवल रोज चेक करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ की नहीं. सो दिस इज वन थिंग विच वी नीड टू सी, दैट इफ वी वांट आवरसेल्फ टू बी हेल्दी, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स ऑल्सो. द एपिडेमिक ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द मोस्ट pressing chronic health challenges facing modern society. And you see these patients with the angina, asthma, anxiety, panic disorders, and आज की डेट में ढोल बजिया. Now, how many of you would like to have a ढोल? But in your function, yes. Nobody would let a function go without a ढोल. पर उस ढोल के अंदर कुछ और भी देखा जाए अगर, तो मिलता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड लिपिड इम्बैलेंस. इसको समझने के लिए दिस इज आई मीन आई डोंट मीन दैट आप अपना ढोल बाजा नहीं बजाएं. ये सिर्फ इस ढोल को उसके जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ भी याद रखें, तो शायद आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड इट विल गिव यू अ पॉइंट कि व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू नीड टू डू नॉट टू डू. और जब ढोल बजता तो क्या होता है? भांगड़ा, राइट? नाउ दिस भांगड़ा हियर हैज़ टू बी सीन व्हाट वी नीड टू डू. वहाँ पे तो व्हेन वी आई मीन किसी पार्टी में ढोल के साथ भांगड़ा कर रहे हैं, पर यहाँ के ढोल के साथ भांगड़े का मतलब कुछ और है. दैट वी नीड टू हैव अ चेंज इन आवर बिहेवियर. That is B, happiness, which is a very, very important and integral part of anyone's life. Active lifestyle, nutrition, glucose control, risk reduction, and abstinence from substance use. Substance use includes tobacco, chewing, smoking, drugs, and alcohol. Now, coming to the most important part
is a diabetes type 2, which we also call, acquired diabetes. There was a time when diabetes used to be considered a disease of elderly people, but no more now. We have got patients as young as 2 years, 3 years also having a diabetes called juvenile diabetes, and youngsters at the age of 12, 13, adolescent age mein bhi people are getting diabetes, which is a very, very alarming thing. And there's a time when we have started saying that India has become a hub of diabetic patients. And what is type 2 diabetes? It is a metabolic disorder where we have got a high blood sugar level, insulin resistance caused by and gradually linked to the lifestyle factors. And key factors usually in diabetes, aap sabko pata hai, out of this, how many people do have diabetes? Can we just have even myself also. So this we need to see that, type 2 diabetes is one thing where we can manage certain things, but it is coming from your genetic factor also. As I said in the, family, if you've got a very strong family history, you are always at a threshold. अगर आप बिल्कुल जो कहा कि नहीं करना बिल्कुल नहीं करते तब तो बचे रह सकते हैं, पर ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है कि जो नहीं करना वो ना करा जाए, और अक्सर होता ही है जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है, कई बार हो जाता है, कई बार हम कर लेते हैं, तो जब हम हो गया या कर लिया तो इफेक्ट तो उसका आएगा ही आएगा ना. So that's where we land up into diabetes. It is preventable and manageable. डायबिटीज़ के सिम्टम्स मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि अगर नहीं भी पता तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जिनके घर में या जिनको अभी तक डायबिटीज़ नहीं है तो कई बार दे रिमेन इग्नोरेंट कि ये मतलब प्यास लगी, हमने काम ज़्यादा करा इसलिए प्यास ज़्यादा लगी है, बार बार सूसू जा रहे हैं क्योंकि पानी ज़्यादा पी रहे इसलिए सूसू जा रहे हैं. तो ये इसका मेन सिम्टम एक रहता है कि पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, बारी बारी पेशाब जाना, बारी बारी प्यास लगना. उसके साथ जो और सिम्टम होते हैं कि ये जो इसमें उससे पूछना आपका डायबिटीज नहीं, मेरे तो जख्म ठीक हो जाते हैं, मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं, इसका मतलब डायबिटीज़ नहीं हो. जो जख्म जिनको लोगों को ये पता है कि जो उनके जख्म हील होना बंद हो जाते हैं वो डायबिटिक हैं, वो बहुत लेट स्टेज पे होता है. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट सिम्टम. तो कई लोगों से ये पूछो कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री में आपकी डायबिटीज़ की कोई वो है, नहीं जी मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है. तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि दैट इज़ नॉट अ प्रिमिटिव इनिशियल सिम्टम, दैट्स अ सिम्टम ऑफ अ वेरी लेटर स्टेज ऑन स्टेज. उससे पहले जो अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस और परसिस्टेंट फटीग जिसे कहते हैं, एंड अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस और विजन में ब्लरिंग होना, दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज़. और किसी भी तरीके का रेकरेंट इन्फेक्शन, यू बिकम मोर प्रोन टू हैविंग इन्फेक्शन, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूटीआई हो, या इवन स्किन इन्फेक्शन हो. तो ये एक बड़े कॉमन उसके फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ पैदा भी कर सकते हैं, और डायबिटीज़ होने वाले को ये सिम्टम और ज़्यादा बढ़ने की टेंडेंसी भी देते हैं. इसमें जो होम्योपैथी की दवाइयाँ, आई थिंक वी नीड नॉट टू टॉक अबाउट दैट. इम्पॉर्टेंट इज वर्क बेस्ट alongside diet, exercise and stress management. Always consult a qualified doctor, because अब जो ये एक उसमें सिचुएशन है जहाँ पे किसी के घर में डायबिटीज़ है तो वो कौन सी दवाई खा रहा है, तो उसके दोस्त को या उसके परिवार में किसी को पता चला कि मेरे को भी अच्छा मैं ये खाता हूँ तू भी खा ले. ये एक बड़ी कॉमन सी फीलिंग है. या नहीं तो वो पूछ लेते हैं कि आप कौन सी खा रहे हो, आप तो अब ठीक ठाक हो, मैंने देखा आप ठीक रह रहे हो तो मैं भी वही दवाई शुरू कर दूँ. तो ये एक aspect है which we should not do. This is a very, dicey situation, because you do not know what are the basic causes and the other. और डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन की बात आती है तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. हार्ट डिजीज़ की है, इसकी कैंसर की है, हाइपरटेंशन है, और आइज़ की यू गेट डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी. तो ये सब तो हैं ही हैं.
एक और है जो बहुत लोगों को बाद में पता चलता है कि उनके पैर में जो चल रहे थे कुछ काट गया, उनको पता ही नहीं लगा, बिकॉज सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होने में उसको सेंसेशन ही नहीं है, तो उसकी पैर में जूते में कोई कील लगा हुआ या कोई कंकर बीच में फंस गया या कभी कुछ हो गया तो वो पता नहीं चलता, क्योंकि नहीं तो वैसे पता चला आप यहाँ पिन चुबाओ फट से आप वो करते हो, क्योंकि सेंसेशन ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला कि आपको वहाँ पे कुछ लगा। तो वो धीरे धीरे इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ अल्सर, और अल्सर का भी जब नहीं पता चला, ट्रीट नहीं हुआ, तो इट बिकम द गैंग्रीन, और गैंग्रीन होने के बाद एक ऐसी नौबत आती है जहाँ पे वो उसको काटना पड़ जाता है, क्योंकि वो ट्रीट नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक केस के बारे में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस पेशेंट की एम्पुटेशन हुई, क्योंकि इसकी जब मेरे पास आए थे तब उनकी ब्लड शुगर थी HbA1c लेवल वॉज 14.6, और ये बात है 27 जुलाई 2017 की। इनका ऑपरेशन हो चुका है, उंगली काटी जा चुकी है और जख्म हील नहीं हो रहा। वो जितनी बारी वहाँ पे ड्रेसिंग कराने जाते हैं, गंगाराम का पेशेंट था, उतनी बारी वो डेब्लिस करके वो और डीप होता जा रहा था, एंड दे वर ट्राइंग एवरी टाइम ड्रेसिंग, एवरी टाइम एंटीबायोटिक्स, न्यू एंटीबायोटिक्स, एवरीथिंग, बट इट वॉज नॉट हीलिंग। देन somebody suggested कि why don't you try homeopathy, so then they came to me, और उसका मैंने सबसे पहले कहा कि आप जो कर रहे हो वो ड्रेसिंग है, we would like to do even the dressing through a homeopathic, और ये एक it is a very evidence based case जिसको आप देख सकते हैं कि उसमें we stopped using all antibiotics। डॉक्टर माधव सर आपके लिए बता रहा हूँ सर, नो एंटीबायोटिक्स एंड नो एंटीसेप्टिक क्रीम, पहले बीटाडिन भी और ये भी सब कुछ वो चल रहा था। तो वी स्टार्टेड गिविंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड स्टार्टेड विद ड्रेसिंग कॉल्ड कैलेंडुला। Calendula is a homeopathic medicine which works beautifully as an antiseptic, and it's one of the best medicine for healing the wound and all that. Calendula की उसे clean करके, calendula की dressing करके, gradually step by step you can see that on 13th August की इसकी पहले बहुत बिल्कुल शुरू दिखना शुरू हो गए, कैपिलरीज में से ब्लड भी आना शुरू हो गया 29th अगस्त, और ये करते करते और 4th अक्टूबर 2017 को wound heal होते थे, and this was the last on 12th of December. Then you can see this totally healed, and his blood sugar level also came down to, HbA1c came down to 8.2, which was a tremendous miraculous effect of homeopathic medicine. And the surgeon who had treated him, he was, how can that be possible? So this was a thing in that case. So we need to be careful about the complications also. Not only कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो है ही है कि इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उसके बारे में ध्यान रखना भी ज़रूरी है. Now coming is a hypertension, blood pressure. अब ब्लड प्रेशर की एक बड़ी भूमिका बांधी जाती है. गुस्सा आता है, हाँ जी आता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. अच्छा, जो उसको आपको ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ जी ब्लड प्रेशर नहीं, मेरे को तो गुस्सा ही नहीं आता. They relate गुस्सा with blood pressure, which is not true. There are people who are lean and thin, जिनको गुस्सा नहीं आता, but they can have a blood pressure. There are people who are अच्छे खासे obese, खाते पीते मतलब उसके, but उनको blood pressure नहीं है. गुस्सा भी आता है, blood pressure नहीं है. तो this is where I was talking about the individuality. तो इस should not be taken as a generalized कि जिसको गुस्सा आता है उसको ब्लड प्रेशर है, जिसको गुस्सा नहीं आता उसको ब्लड प्रेशर नहीं है. और पहले के टाइम में, आज से कुछ साल पहले, अब तो नहीं, लोगों को ब्लड प्रेशर का पता तब चलना शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी LIC की पॉलिसी कराने जाते थे, तब उनका वह चेक होता था कि भाई, क्योंकि ब्लड प्रेशर को पहले चेक कराता ही नहीं था, होता ही नहीं था. तो जब LIC की अपने वो चेक कराई वहाँ पे, तब उनको पता चला. और उसके बाद जैसे ही पता चला ब्लड प्रेशर है, अगले हफ्ते से उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. दैट इज़ द ब्यूटी कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अवेयर, यू डोंट हैव एनी फीलिंग, and the moment your mind knows कि you have got a blood pressure, now start having symptoms. This is a reality. And risk of blood pressure, you all know, it's a stroke, heart attack, kidney disease and heart failure. जैसे हमने बात कर रहे थे कि इसके लिए डायबिटीज़ के सिम्टम, तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम, एक तो गुस्सा, वो तो मानने वाली बात है ही. दूसरी सिर दर्द, सिर का दर्द, आँखों में रेडनेस,
अब जैसे कईयों की होती है आंखों में रेडनेस, वो ये नहीं पूछते ब्लड प्रेशर पी के आया क्या, कोई ज़्यादा मतलब लाइक देयर फर्स्ट थॉट वुड बी कि ज़्यादा चढ़ गई है पी के आया, तो इसलिए वो भी हाँ मैंने पी थी तो इसलिए ही वुड श्रग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि मेरा ब्लड प्रेशर है. फिर देन यू हैव अ सिम्टम्स ऑफ सडन डिजीनेस और पैल्पिटेशन या इरिटेबिलिटी और विजन में ब्लरिंग एंड देन इजी फटीग. नाउ ये तो हो गया, अब इसको करें कैसे? हाउ डू वी रिड्यूस सॉल्ट बाय 50%, वॉक 30 minutes daily, practice deep breathing 5 to 7 times, avoid smoking alcohol, drink pickles, papad, chips and namkeen, big no. तो ये अगेन कहना जितना आसान है उतना है क्या करना? नहीं. What are the warning signs for blood pressure is, they are asymptomatic cases. There are a lot of patients जिनको कोई सिम्टम नहीं है एंड ब्लड प्रेशर रिमेन्स वेरी हाई. आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ केस ऑफ माई स्कूल टीचर हुज बीपी, आई मीन आई वाज ए स्टूडेंट, तो आई मीन मेरे पास है, मैंने उनका ब्लड प्रेशर चेक करा, कहते यार ब्लड प्रेशर चेक कर. एंड माइंड यू ही वाज अ एनसीसी टीचर एंड ही वांटेड मी टू, मेरे को सर्टिफिकेट दे दे उसका क्या नाम फिटनेस का, मेरे को एनसीसी का कैंप अटेंड करना है. मैं मना भी क्या कर सकूँ, मैं कहा सर ठीक है मैं देखता हूँ. मैंने देखा 250 by 150, मैंने फिर दोबारा लगाया, फिर तीसरी मशीन नहीं हम लोग को, तो कहते क्या हुआ, मेरे को मैं कहते हुए डर लग रहा कि मैं सर को कैसे बताऊँ अपने. मैं कहा सर इनका तो आपका बीपी तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है. तो कहता क्यों घबरा गया क्या? मैं कहा हाँ जी सर. मैं कहता मेरे को पता है, तू बस मेरे को खाली वो दे दे सर्टिफिकेट. मैं कहा सर आप कमाल कर रहे हो, आपने एनसीसी का कैंप, वो एयरविंग का उसमें वो थे आई मीन हेड, वो कैंप के लिए मेरे को सर्टिफिकेट मांग रहे हैं. मैं कहा सर मैं आपको मना तो नहीं कर, सर्टिफिकेट मना नहीं कर, पर मेरा मन ही नहीं मान रहा और मैं आपको कैसे कह दूँ, आपको जाना भी नहीं चाहिए, तू देना यार. कहते मैं जनकपुर ही रहते थे और वहाँ पे रोजरी गार्डन में एक लमरेटा चला के आऊँ अपने, उसको तो कुछ हुआ मेरे को. अब अगर इस टाइप की सिचुएशन आप क्या करोगे? ठीक है, मैं कहा सर आप मेरी मानो, आप इस कैंप में रहने लो, कुछ दिन टेस्ट करा लो. वो कहता अच्छा चल मैं करा लूँगा देखूँ. खैर एनीवे वो तो बात निकली. एंड सिचुएशन क्या हुई, he got a kidney failure, both kidneys got failed and he got a kidney transplant twice. 2 बार उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ and still he could not survive. So that is the situation जो I mean which should be given as a warning and we should, अगर हम जैसे तो लाल बत्ती और येलो बत्ती को हम ध्यान में रखें, तो अगर येलो बत्ती में हम थोड़ा सा ध्यान में तो लाल बत्ती वाली सिचुएशन से बच सकते हैं. तो वी शुड बी केयरफुल. जहाँ पे भी वार्निंग साइंस मिलते हैं तो वी शुड बी आई मीन टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स. देन यू हैव गॉट अ डिजीनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, परसिस्टेंट हेडेक, इरिटेबिलिटी, नोज ब्लीड्स. दीज आर द आई मीन अदर सिम्टम्स. मेडिसिन को छोड़ देंगे हम. ए होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटिंग द होल पर्सन, इमोशनल स्ट्रेस, लाइफस्टाइल एंड कंटिन्यूअल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, they are the I mean basic things on which homeopathic medicines are given. PCOS is another I mean disease of lifestyle amongst the ladies. It affects basically their common hormonal disorders because of irregular medicines. I mean menses would be there. There would be elevated androgen levels and multiple small ovarian cysts. आज की डेट में अगर हम यंग लेडीज़ का एट द एज ऑफ सपोज आई मीन 16 to 30 की एज में अगर हम लेडीज़ को लें, आई थिंक 40 to 50% गर्ल्स एंड लेडीज़ दे डू सफ़र फ्रॉम PCOS. अगेन रीज़न बीइंग पहले मौज मस्ती में खाते पीते रहे, मौज मस्ती में वो करते रहे, ध्यान नहीं दिया, बाद में कोई नहीं हो जाएगा. फिर जब वेट बढ़ना शुरू हुआ, फेस पे बाल आने शुरू हुए, पिंपल्स आने शुरू हुए, हेयर फॉल शुरू हो गया, और तब एक बार उन्होंने शायद जिम भी ज्वाइन कर लिया, उसमें आके वो करेंगे, जिम ज्वाइन करा, जिम वाले ने आपको वो सप्लीमेंट्स भी दे दिए. देन द होल सिनेरियो गोज फ्रॉम बैड टू वर्स एंड द प्रॉब्लम क्रॉप्स अप. एंड दैट इज़ वेयर आज की डेट में आप देखेंगे तो आई मीन many girls and ladies after getting married they don't get pregnant. The infertility occurs because of that. So this is a very very important aspect for girls to see at this tender age
and understand, and if they take care of themselves, they can take care of the family, they can take care of the husband and their family, which is about to come. Recognizing symptom, because यहाँ पे ज़्यादा ladies नहीं, but still anyway, कि irregular periods का है, acne आनी शुरू हो जाती है, hair loss हो जाए, मैंने पहले बताया weight gain का, और fertility challenges, mood swings, ये एक बहुत common factor है जिसको आम तौर पे ladies का period के time पे होता ही है, पर once the lady get married, it is the husband who can tell the mood swings and then can tell कि क्या होने वाला है. This is where we need to कि वो जो उनकी मूड स्विंग की वो स्टेज है कहाँ तक जाएगी और उनको क्या क्या फेस करना पड़ेगा. तो वो बेचारा हस्बैंड ही स्टार्ट्स टेकिंग केयर राइट फ्रॉम डे वन, द मोमेंट यू कम टू नो उनका मूड स्विंग की कोई सिनेरियो आ रहा है. होलिस्टिक अप्रोच इज बेस्ट रिजल्ट विद बैलेंस्ड डाइट, exercise, stress management, and adequate sleep. Now, anxiety disorder, anxiety, depression. आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो पहले करते थे एंजाइटी या डिप्रेशन. डिप्रेशन किनको होता है? जिनके साथ कोई बहुत बड़े हादसे हो गए हो, बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, या कोई पेरेंटल या कुछ ऐसी किसी की डेथ हो गई हो जिसके आप बहुत क्लोज थे. पर आज की डेट में डिप्रेशन और एंजाइटी का ये सिनेरियो नहीं है. वी आर सीइंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड पैनिक डिसऑर्डर्स एंड पैनिकी सिचुएशन इन यंग चिल्ड्रन, as young as school going children. So they are having their pressure on हमारा कल को वो देना है, कंपटीशन है, पेरेंट्स की वो ज़्यादा वो रहती कि आपको उसको ये करके दिखाना है. तो वो ये वन इट्स अ वन थिंग लीड्स टू द अदर which we need to understand, because this is all come under the lifestyle. Contributing factors are constant connectivity, information overload, work pressure, financial stress, social media comparison, and relentless pace of life. स्ट्रेस सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड भी है, क्योंकि उसको लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मानते ही नहीं हैं. वो तो सिर्फ हमेशा ये एक हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति रही है कि जहाँ पे आपकी कोई नेगेटिविटी आती है तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको रीजनिंग दे के नहीं, इस वजह से मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मन नहीं मानता कि आपको ये हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर प्रॉब्लम होती है व्हेन वी टेक दीज थिंग्स और वी डू नॉट टेक अ प्रॉपर रेमेडियल मेजर. और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एंग्जाइटी, वरी, फियर और स्ट्रेस ये सब चीज़ें हैं. इस पूरे हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, कैन आई गेट अ पर्सन हु से मेरे को कभी एंग्जाइटी नहीं हुई, या कभी पैल्पिटेशन नहीं हुई, या कभी घबराहट नहीं हुई? कोई है सर? तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम सब उसी के शिकार हैं. बट व्हाट वी नीड टू सी इज हाउ टू टैकल. कि जो होना है वो उसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अब अगर उन्हीं फैक्टर्स में हम समझ के अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाएं, देन वी कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. और इसमें होता क्या है, यू कैन हैव अ पैल्पिटेशन, आपको नींद नहीं आएगी, फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे सांस चढ़ रहा है, हाफना जल्दी होता है, बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, परसिस्टेंट अनकंट्रोलेबल कंसर्न्स हैं. और इसका इम्पैक्ट आपके डाइजेशन पे और कॉग्निटिव फॉग में डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग. मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, मैं पढ़ता रहता हूँ. वो बच्चों से पूछो, पूरे दिन किताब लेके बैठा रहता हूँ पर याद नहीं होता या समझ नहीं आती. तो उसको भी वी नीड टू गो इनटू मोर डिटेल कि व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैव कम एंड हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट. इसमें अगेन वी हैव होम्योपैथी हैज गॉट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स and depression, and the combined treatment with relaxation, mindfulness and lifestyle change for comprehensive anxiety. And in certain cases we need the counseling also, the help of counselors, the help of psychologists, the help of clinical psychologists. They go hand in hand.
मेडिसिन हेल्प्स बट काउंसलिंग सेशन दे हेल्प मोर, बिकॉज जो चीज़ आप एक एज अ होम्योपैथ, ईच एंड एवरी होम्योपैथ इज वेरी गुड काउंसलर, बट दैट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. He can counsel the patient, but he cannot tell you the techniques how to, overcome those. There comes the role of a psychologist. The another very important thing is obesity. किन किन के अपने मोबाइल में ये ऐप्स हैं जोमेटो के जोमेटो, ब्लिंकिट and all that. So the more the apps, more the problem. There used to be a time when we used to say more the merrier. Here it is not merrier. We need to be a little more careful rather. The next generation will have to work really hard to stay healthy. And Zomato and Swiggy don't want you to cook your own food. Ola and Uber don't want you to walk. And Zepto and Blinkit don't want you to leave home. So हमारा बिजनेस चले या उनका? तो वी नीड टू सी कि हमारी लाइफ चले, उनका बिजनेस चले ना चले, तो उसके लिए थोड़ा सा वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, जेनेटिक्स, इमोशनल ईटिंग एंड स्लो मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल इश्यूज, क्रॉनिक कंडीशंस आर देयर विच लीड्स टू दिस ओबेसिटी. और एक ओबेसिटी का वैसे भी माना जाता है कि ओबेसिटी अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देती है. तो इसलिए वी नीड टू बी टेकिंग केयरफुल अबाउट दैट. और इसमें जो नॉर्मल BMI है, दैट्स बॉडी मास इंडेक्स, इट शुड बी अराउंड बिटवीन 18 to 20, 24. अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो यू कैन पुट योरसेल्फ इनटू दैट कैटेगरी कि आप उसमें हाई वेट में हैं, आप उसमें ओवर वेट में हैं, सीवियर हैं, या मेलिग्नेंट की फॉर्म में भी जा रहे हैं. तो दिस यू नीड टू टेक केयर. और उसका आसान तरीका है अपनी हाइट को अपने वेट के साथ, वेट को अपने हाइट के साथ डिवाइड करके देखें तो वो जाएगा, पता चल जाएगा. टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, फैटी लिवर डिजीज़, जॉइंट पेन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड स्लीप एपनिया, दे आर द कॉमन फीचर्स वी सी इन पेशेंट्स दोज हू आर ओबीज. ओबेसिटी के लिए मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर, पर मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो कहते हैं, हमारे क्या पूछते हैं क्या हमारी ओबेसिटी का इलाज होम्योपैथी ज़रूरत है. मैं पहले सबसे पहले तो हमें ओबेसिटी का कारण ढूंढना पड़ेगा. अगर कारण उनके बदले वांट स्पेसिफिक, आज की डेट में यू वांट कि पेटेंट दवाई बता दो कि वेट कम करना की पेटेंट दवाई बता दो. तो आई ऑलवेज टेल देम नो, देयर इज नो पेटेंट रेमेडी, देयर मेडिसिन यू हैव टू गो बाय द, वी नीड टू टेक अप द केस और उसमें अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द डिजीज और कॉज ऑफ द ओबेसिटी एंड मैनेज अकॉर्डिंगली. अगर आपकी ओवर ईटिंग द रीजन है तो आप ओवर ईटिंग बंद कर दो, वेट अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा. तो ये चीज़ें भी हैं. सस्टेनेबल वेट लॉस नीड्स ट्रीटमेंट प्लस डाइटरी इम्प्रूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स टू. नाउ दिस इज in present scenario days, this is a very another new disease which is coming out in a lifestyle disorder is called NAFLD, this is non-alcoholic fatty liver. क्योंकि जब तक पहले आपसे कुछ साल पहले जिनको पूछो कि आपका लिवर खराब है, पीता होगा कितना, मतलब सिरोसिस हो गया, कितने पीते थे. तो ये दिस वॉज अ थिंग. बट नाउडेज देयर आर पीपल हु आर एब्सोल्युटली teetotalers. They are also having fatty livers. And that is because of their faulty lifestyle. तो उस लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, जिनको ये चीज़ें हैं उनकी प्रॉब्लम में ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं. और होता क्या है, इसमें फैट एक्यूमुलेट हो जाता है एंड मिनिमल और नो अल्कोहल इनटेक अफेक्ट्स 25 to 30% ऑफ एडल्ट्स. रेंजेस फ्रॉम फैटी लिवर टू सिरोसिस. सिरोसिस मीन्स जब आपके लिवर बिल्कुल डैमेज हो जाए, ख़त्म होने वाली बात होती है जब में. Early symptoms could be asymptomatic. Early most feel normal. Second में persistent fatigue, unexplained tiredness, often the first sign. And the right upper abdomen, यहाँ पे पेन महसूस होती है, डाले रहती है, और उसके बाद पता चलता है कि आपको प्रॉब्लम हुई है when you go on for a blood test and ultrasound done. और elevated enzymes. हाँ, यहाँ पे एक जो एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे मेरे को याद आ रही है कि जब हम बात कर रहे हैं हम एलिवेटेड एंजाइम, जिसमें SGOT, SGPT वो आते हैं, तो कई बार पेशेंट आते हैं कि मेरे को ना वो बढ़ा हुआ, आप इसका इलाज कर दो.
मतलब दे गेट आजकल जो आई मीन आपके टेस्ट होते हैं जिसमें कंसेशन के साथ पूरी प्रोफाइल हो जाती है, मैंने उसको 3 टेस्ट लिख के जो 25 टेस्ट करा के आता है रिपोर्ट की। मैंने कहा वो कह रहे थे इतने में ये भी करा लो, सिर्फ थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब मैंने को 3 टेस्ट की रिपोर्ट देखनी तो मेरे को 25 टेस्ट की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। मेरे को पैसे ज़्यादा लेनी चाहिए ना या नहीं? So this is a situation, if we go in a right manner, things done, what your doctor is asking, I think we should go for that. क्योंकि जहाँ पे आपको पता कि it is irrelevant, and then the patient start asking मेरा ESR 15 होना चाहिए, 18 है, इसकी भी दवाई दे दो। फिर मेरा ये क्या नाम SGOT SGPT 41 की रेंज में 45 आ रहा है, इसकी दवाई अलग से दे दो। उसकी तो आपके फिर यही चलती रहेंगी जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। Until unless the patient has a symptom, or when the doctor has examined the patient and he finds some pathology is, condition is there, something wrong is there, then only he advises thing and it goes for that. Weight gain, difficulty in losing weight, especially in the abdomen, and digestive issue, bloating, gas, discomfort, and fatty liver. Lifestyle is a key. Significant improvement with weight loss, low carb diets, regular exercise, and avoiding alcohol. Sleep disorders is also one of the lifestyle disease. आज की डेट में मेरे ख्याल बहुत सारी परसेंटेज है जो आज सोती ही नहीं है, वो हमेशा कल सोते हैं। जिस डेट में वो उठे हैं उस डेट में नहीं सोते। मैं भी था ऐसे पहले, तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। बट आज की डेट में क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, स्पेशली दोज पीपल हु आर वर्किंग विद शिफ्ट्स, जिनकी शिफ्ट ड्यूटीज ऐसी हैं, उनके साथ तो उनको लिए तो करना ही पड़ेगा। पर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम जो शिफ्ट ड्यूटीज़ वाले नहीं हैं, या जो लेडीज़ हैं, या जो आई मीन पीपल हैं दोज हु आर स्टेइंग एट होम, उनकी प्रॉब्लम है मोबाइल। मोबाइल इज़ अ रूट कॉज फॉर देयर आई मीन कीपिंग देमसेल्फ अवेक, चाहे वो रील देखें, चाहे वो कुछ देखें, या कुछ भी चैटिंग कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वी नीड टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम विच इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। अब आपकी स्लीप में वो होता भी क्या कि आपको किसी को तो लगते हैं कि मतलब मैं सुबह उठता हूँ पूरी रात सोया ही नहीं, जबकि उसके साथ जो सोया बंदा वो वो खराटे मार रहा था। सो नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस इज बिकॉज योर माइंड इज वर्किंग, तो दिमाग से आप चल रहे हो, सोए हुए हो, आपको ये नहीं पता कि आपके वहाँ पे क्या हो रहा है, पर दिमाग से आपकी चाहे कुछ भी वो चल रही है। एंड व्हेन यू गेट अप यू फील एज इफ आप पूरी रात सपना वो देखते रहे, आई मीन पिक्चर देख रहे, तो इसलिए सोए नहीं। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग विच वी नीड टू टेक केयर। क्रॉनिक स्ट्रेस एंड रेसिंग थॉट्स, excessive screen time, irregular schedules, caffeine and stimulants, poor sleep environment, and consequence of poor sleep affects immunity, weight, mood, cognition, increased disease risk, and accelerates aging and reduces the overall quality of life. Difficulty in falling asleep, awake for 30 plus minutes, mind racing और वो चल रहा है, frequent awakening, थोड़ी देर सोए फिर नींद खुल गई, थोड़ी देर सोए फिर नींद खुल गई, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, वेकिंग एट 3 to 5 AM, अनएबल टू फॉल बैक स्लीप अगेन। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे हमको देखना है कि मेन पेशेंट फॉल्स इनटू विच कैटेगरी, और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी दिया जाए। क्योंकि जब अगर हम एज ए मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सिर्फ यही कहते हैं हमारी नींद आती नहीं है, मतलब जब भी आई मीन पूछो नींद डिस्टर्ब रहती है, उसके बाद ये आपको आई मीन कंफर्म करना पड़ता है आपके अटेंडेंट के साथ या बाकी घर वाले लोगों के साथ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सीन बिहाइंड। स्लीप डिसऑर्डर्स की ये कुछ दवाइयाँ हैं, इसको भी हम छोड़ देंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। स्लीप इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। तो इसको प्लीज़ एट एनी स्टेज डोंट निगलेक्ट इट। Sleep hygiene is essential. Consistent bedtime, dark, cool room, no stress, 1 hour before bed, relaxation, and avoid caffeine. Impact and prevention strategies. Get active for an
hour or more each day. These are few takeaways, things which can, if we abide by those things, we can definitely feel much better. Eat fewer snacks and select healthier alternatives. Choose water as a drink. Eat more fruit and vegetables. Turn off the TV or computer and get active. Little difficult but not impossible. और भगवान की तरफ से हमारे को इतने फर्स्ट क्लास वो डॉक्टर्स मिले हुए हैं, मेरी भी ज़रूरत नहीं है और डॉक्टरों की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़े अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें. These are the natural, doctors. There's water, fresh air, rest, exercise, good diet and sunshine. And let's talk about homeopathy. I think, ज़्यादा हो रहा तो shall we go ahead? और हर पेशेंट का लाइफस्टाइल अलग होता है, इसलिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअलाइज होती है. दिस इज डॉक्टर Samuel Hahnemann who started this homeopathy with the principle of similar similibus currenter. And as we always say that homeopathy ensures health safely, it is because of certain reasons. It treats the doses, patient with the minimum dose. मैं अगेन मैं बात बताता हूँ कि जब पेशेंट आते हैं जो दूसरे थेरेपी से आए हुए होते हैं तो वो कहते हैं आपकी दवाई में तो गोलियाँ तो इतनी सी 4 तो गोलियाँ होती हैं, 6 गोलियाँ, तो इससे क्या होगा, हम तो इतने बड़े कैप्सूल, इतने बड़े इंजेक्शन और वो खाएं, उनसे कुछ नहीं होता, आपकी दवाई से क्या असर होगा. तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है उनसे कि एटम बम कितना बड़ा होता है. अगर आप एटम बम किसी ने देखा, जितनी उसकी एफिशिएंसी या उसकी मतलब नेगेटिव फॉर्म में जो इम्पैक्ट है, अगर आप जितना होती है उतना बड़ा नहीं होता. दैट इज एन एनर्जी. सो इज द होम्योपैथी. होम्योपैथी इज ऑल्सो एनर्जी. वी हैव गॉट अ वेरी टाइनी बॉल्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइटैलिटी, और वो जितनी हम रेडिएट करते हैं एनर्जी को उतना उसका इम्पैक्ट दिखता है. तो इसलिए एटम बम का बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है उतना मतलब आपको डिज़ास्टर करने के लिए. ऐसे ही दवाई का इतना बड़ा होना ज़रूरी नहीं है आपको ठीक करने के लिए भी. Scope and significance of homeopathy, it is at present considered to be the second fastest growing therapy in the world, and WHO has also recognized it and giving it priority. And Ayush has taken it up, but again Ayush में हमारा उतना ज़्यादा वो रोल नहीं आ पा रहा because of जो उनकी एफिनिटी है. आयुष मिनिस्ट्री में जो वो हैं हमारे सेक्रेटरी हैं, ही इज़ हिमसेल्फ एन आयुर्वेदाचार्य, तो उनकी एफिनिटी उस तरफ ज़्यादा, और वैसे भी हमारे पीएम मोदी साहब की भी एफिनिटी आयुर्वेदा और योगा पे ज़्यादा है. ऐसा नहीं कि उन्होंने, बल्कि उनके आने पे ही ये आयुष मिनिस्ट्री हुई है. एंड यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, शायद जो प्रोफेसर सुरेश ने भी बताई थी, कि आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन. दैट इज़ वाई आई बीन ऑनर्ड विद द टाइटल दैट फादर ऑफ इंटीग्रेशन एंड होम्योपैथी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर. तो ये दैट वाज वे बैक इन 1999. मस्त उसके बाद बहुत सालों बाद जब मेरे पास उनके हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस मेरे पास क्लिनिक पे आए थे, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी. उसके बाद हर एलोपैथिक हॉस्पिटल में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरियाँ खोली गई थी फॉर द एक्चुअल वेलफेयर ऑफ पेशेंट्स. क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो एलोपैथी की दवाई ले रहा है वो खाता रहा, उसको आराम आ रहा है. आई एम सेइंग नथिंग अगेंस्ट एलोपैथी. एलोपैथी इज वेरी गुड, बट इट ऑल्सो गॉट समथिंग टू ऑफर, बट ऑल्सो इट हैज़ ऑल्सो लिमिटेशन. सो इज एवरी सिस्टम. हर एक सिस्टम की अपनी एफिकेसी, हर एक सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है, और अगर हम उन चीज़ों को समझ लें देन वी कैन डू रियली वंडर्स फॉर दी पेशेंट्स. इसमें कॉम्प्लीमेंट्री केयर भी है, प्रिवेंटिव पावर भी है, और जेनेटिक कंट्रोल भी है. डॉक्टर माधवन, प्लीज लिटिल अटेंशन. वी हैव सीन केसेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो बीइंग हेल्प्ड विद होम्योपैथी, which is unbelievable, but it is happening. We have got evidences. Same is the case with when we say that MND, motor neuron disease, it is not treatable at all. We have got evidences where we are getting very good results. But my only humble request remains with all those big notches of hospitals and neurologists, that don't say like this कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा, और अल्टीमेटली तो दिस कॉजेज अ रियल ट्रॉमा टू द पेशेंट्स माइंड,
and to the family members of that, and they start dying from that very day. एक दिन में अभी I saw a patient जो who was gone to the hospital, he was absolutely hale and hearty. जब वहाँ पे उसके MND डिटेक्ट करा, उन्होंने निकाला, पहले उसमें वेंटिलेटर पे रखा, 1 महीना भर उसको he was in ICU. Now then they say कि इसका कोई इलाज नहीं है. So this is a very pathetic situation and unfortunate, but we have to fight and learn with that. Role of homeopathy in treating lifestyle diseases: it enhances the immunity, deep healing, stress tolerance and metabolic balance. Constitutional homeopathic for prevention. अगर जिन पेशेंट में टेंडेंसीज हैं, अगर कुछ टेंडेंसी जैसे रिकरेंट कैलकुलाई की टेंडेंसी है, रेगुलर स्टोन फॉर्मेशन के अलावा किसी को जॉन्डिस की या उसकी प्रॉब्लम है, या साइनस की प्रॉब्लम है, या टॉन्सिलस की प्रॉब्लम है, दोज प्रॉब्लम्स कैन बी averted by giving a proper constitutional treatment and medicine to the patient and their patient families also. The winning combination is, अगर आप होम्योपैथिक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ हम अच्छी डाइट लेते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और डिजिटल डिसिप्लिन करते हैं, certainly we can reduce many of lifestyle disorders to a greater extent. Wonders of homeopathy is I just want a quick brush so that people can see what homeopathy can do. Homeopathy modern lifestyle is imbalanced to correct करती है. होम्योपैथी सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती, बॉडी की बैलेंस करने की शक्ति को बढ़ाती है. This is one case where you can see the epidermolysis bullosa. This was a patient, Professor K.G. Suresh was talking about. I was called upon to see this patient in Germany. She's a German girl. So I was called upon to see this patient in Germany only. This is psoriasis, very common disease. This is leukoderma, जिसको हम आमतौर पे फुलवेरी या विटिलिगो भी कहते हैं. This is atopic dermatitis, जो बच्चों में आपको देखने को मिलती है. We have allergic problems और उसके यहाँ दिखती हैं. And you can see this condition of the child before and after. These are all cases before and after. This is alopecia areata, जहाँ पे मतलब सिर के बाल चले गए, and after homeopathic treatment this has come. And this is what I was talking about, the MND case. This young boy was around 18-19 years old who was brought to my clinic. उसको गोदी में उठा के ले आते थे, and next में he was not able to get up. He could not get up from the seat. In October 23, ये 2019 की बात है. October 23 में वो push-ups कर रहा है, and he's running, doing running and planning to join army now. And this was a beautiful case. So, change your lifestyle before your lifestyle change you. Your journey to wellness begins here. Be happy, be healthy with homeopathy, and vibrant health, peace and lasting vitality, harmonizing your body's wisdom. And thank you very much. Thank you. Thank you. And sorry, any questions? Forget to ask. Any questions? Anything? I'll definitely. Yes, please. Some doctors say you should take the mother tincture, put a few drops in water and have. So what is the correct thing? I would like to know that, please. Thank you. Thank you very much. It's a very good question which you have asked, because a lot of people have this kind of misconception कि जो गोली दी जा रही है वो असर कम करती है, टिंचर असर ज़्यादा करती है. ऐसा नहीं है. It is again the experience of the doctor which matters and his style of working. As we said, it is in a very dynamic stage जो होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है. जो टिंचर तो इट्स इन ए क्रूड फॉर्म. जो क्रूड फॉर्म की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे टिंचर दिया जाता है. और अगर आप वो कह रहे हैं कि जो एक ड्रॉप्स गोलियों में डाली जाती है उसकी ड्रॉप्स और गोली में क्या फ़र्क है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता. इट इज़ ओनली योर वे यू फील कि मेरे को कई लोग कहते हैं मीठी गोली खाएंगे तो कहीं शुगर ना हो जाए. ऐसा भी नहीं है. और सिर्फ वो इसलिए दी जाती है कि जो डाइल्यूशन होती है उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है. एंड कई बार जो डायरेक्ट टंग पे डाल लेते हैं इट कैन कॉज लिटिल अल्सरेशन एंड ऑल दैट.
नहीं वो टिंचर, हाँ वाटर में, यस, बट देर आर सर्टन पीपल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी. एज आई सेड, इट होम्योपैथी इज टोटली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अप्रोच. हर बंदे को अलग अलग वो चीज़ में वो होती है. आपको किसी चीज़ के जिससे फ़ायदा हो रहा है उसको जरूरी नहीं उनको फ़ायदा हो. और होम्योपैथी में एक और चीज़ है, लोगों के दिमाग में रहता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते ज़्यादातर. आमतौर पे ये एक, हाँ ये एक प्रॉब्लम भी है कि कायदे से हमें देना भी चाहिए, क्योंकि ये आई मीन दे हैव गॉट अ राइट टू नो व्हाट मेडिसिन इज बीन गिवन. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे हिंदुस्तान देश में एक तो अगेन बुराई नहीं कर रहा, पर ये जो सच्चाई है उसे भागा भी नहीं जा सकता. सबकी आदत होती कि अपनी बीमारी के बारे में बताना या अपने इलाज के बारे में दूसरे को बताना, और दूसरे की आदत होती है कि यार फ्री की एडवाइस मिल रही करके देख लेते हैं. ठीक है, अब इसमें मैं एक आपको छोटी सी दवाई बताता हूँ. नक्स वामे का एक दवाई होती है होम्योपैथी की, जो डायरिया के लिए भी यूज़ होती है और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ होती है. अब मैंने जैसे पहले बताया था कि दवाई बीमारी के हिसाब से नहीं दी जाती, बीमार के हिसाब से दी जाती. अगर बीमार नक्स वोमिका का पेशेंट है तो चाहे उसको डायरिया हो या आई मीन कॉन्स्टिपेशन हो, वो ठीक हो जाएगा. पर अगर आपने नक्स वोमिका, आपको तो पता नहीं ना, आपको तो मेरे दस्त उससे ठीक हुए थे, वेरी गुड. अब वो भाई साहब साथ बैठे हैं, वो भी उनको पता चला, वो कहते हैं मैंने भी नक्स वोमिका है, पर मेरे को तो कब्ज़ के लिए दी थी. हो गई ना लड़ाई. अब कौन मानेगा आप किसकी बात. तो ये एक बहुत बड़ा आई मीन प्रॉब्लम है होम्योपैथी की प्रिस्क्रिप्शन ओपन करने में. जी. अगर ऐसा होता तो हमें सरकारें सब कुछ कर चुकी होती, सिवाय ब्लेम करने के और कुछ नहीं करते ना. थैंक यू. या डिसऑर्डर है और ये अचानक जब हुआ था तो मुझे पता ही नहीं चला था. जैसा कि आपने कहा कि हाइपरटेंशन होता था, 1 साल तक मुझे वैसा होता रहा. और फिर जब एंग्जाइटी अटैक्स होते थे तो मुझे जब मैं कभी मेज़र कराने जाती थी तो वो बीपी मेरा नॉर्मल आता था. बट अभी मैंने काफ़ी टाइम से होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ, तो इट रियली वर्क्स, बहुत अच्छा वर्क कर रही है. और मतलब मुझे पहले एंग्जाइटी अटैक जब होता था तो मुझे 4-4, 5-5 घंटे लग जाते थे उस जोन से बाहर आने में. इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई एम अ हैप्पीनेस कोच, कि मैं और लोगों को काउंसलिंग कर रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ. बट मुझे ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता. बट अभी भी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं 95% बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कुछ चीज़ों से है, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ भी रिलेटेड है, अगर मेरे घर में कुछ हो गया या बाहर कहीं कुछ हो गया, तो आई ऑलवेज ट्राई कि कोई मतलब जो अननोन बंदा है जिसको नहीं पता है वो ना छुए. और मुझे इस तरह से अटैक होता है कि मेरा माइंड जो ना वो बिल्कुल फ्रीजिंग जोन में चला जाता है. बिल्कुल. ये ना एक तो जैसे जो पहले कह रहा हूँ, आपको एसिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम रही जी, पता चला ब्लड प्रेशर बाद में है, तो जी जी, दैट इज फाइन. तो ये तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही केस दूसरी है. चीज़ होती है एंग्जाइटी के ना, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं. ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी और माइंड किस चीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है. ठीक. जहाँ आपकी संवेदना ज़्यादा होगी तो उसमें आप अफेक्टेड होंगे. इनको नहीं पड़ रहा, आपको फर्क पड़ जाए उसी चीज़ में. जी, मैं कहता हूँ अभी यहाँ पे एक पटाखा बजता है, जोर से आवाज़ आती है, आई मीन त्रिपाठी सर सोचते हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो जाएगी. मैं वो कहेंगे यार ये तो किसी का मतलब हल्का सा पटाखा, कोई दूसरा कहे नहीं यहाँ पे तो कोई वो आर्मी वाले बैठे हैं, किसी ने वो तो नहीं कर दिया, हमला तो नहीं कर दिया. स्टिमुलस इज द सेम. वही एक ही, बट इफेक्ट हर एक बंदे का अलग अलग आता है एज पर योर माइंड, एज पर योर थिंकिंग. तो वो उसी ऐसे ही आपकी बॉडी की जो सेंसिटिविटी है वो अलग अलग है. अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, हो सकता है आपको कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जहाँ पे आपको आई मीन बैड एक्सपीरियंस विद इलेक्ट्रिसिटी, सो यू आर ओवर कॉन्शियस, विच इज़ नॉट बैड, बट गेटिंग इनटू पैनिक मोड इज सर्टेनली नीड टू बी एड्रेस्ड. हाँ, ये हुआ था ऐसा, तो उस वजह से भी है. ऑब्वियसली जी. तो ये देखो ना, आपने जिसके पास लिफ्ट में कोई एक बारी बंदा गया, उसकी लिफ्ट बंद हो गई बीच में, और उसके पास जो उस टाइम पे जितना भी टाइम लगा, हैरोइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम और हर, वो आगे से 36 बारी सोचता मैं लिफ्ट में जाऊँ या नहीं. हाँ जी हाँ जी. वो क्यों? बिकॉज योर माइंड हैज माइंड सेट इस तरह का हुआ है. समझ गई.
तो ये ऐसी आपकी वो चीज़ों की, आप किसी भी चीज़ के लिए वो करते हैं ना, अब जैसे मैंने ये खाऊंगी तो मेरे को ये डकार आ जाने लगेगा, मेरे को ये हो जाएगा, आपका माइंडसेट ऐसा है, इसलिए होता। अगर आप उससे फ्री माइंड से कहेंगे नहीं होगा। नहीं, वो माइंडसेट तो ऑब्वियसली काम करता है, क्योंकि मैं खुद माइंडसेट पर इतना काम करती हूँ, तो मैं कोशिश भी करती हूँ कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया है। बट मेरे डॉक्टर ने भी कहा कि ये ट्रिगर्स होते हैं। हाँ, ट्रिगर्स होते हैं, ये मेडिसिन आप कितना भी ले लीजिए, उसमें ट्रिगर्स में जो पॉइंट्स हैं, नाउ इट इज़ वन ऑफ योर चाइल्ड जी, वन ऑफ योर आई मीन वेरी नियर एंड डियर वन, उसके साथ कोई वो, आप तो हर तरह से कोशिश करोगे टू प्रिवेंट दैट। हाँ जी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे और वहाँ पे किसी को कुछ हो रहा है तब थोड़ी ना इतना करोगे, बॉदर करोगे। हाँ, ये भी that is the difference, ना? So that is again the difference comes what your body and mind is going through. ओके, ठीक है, थैंक यू सर। Thank you. Is there any homeopathic medicine or treatment for controlling and curing this diabetic neuropathy, nerve damage, tingling sensation in feet, hands, legs, and the lower body, particularly in the night, evening or night? Now, I think this is a very important question which you have asked. But हमने सारी वो बात करने के बाद फिर पूछ रहे हम सीता कौन थी रामायण पढ़ने के बाद। रीजन हमें बुरा नहीं माना मेरी बात। I know that we have to control sugar. हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। पर आपने पूछा इज देयर एनी मेडिसिन, एनी मेडिसिन पेटेंट होम्योपैथी के अंदर होती ही नहीं है। यस, if you ask is there any treatment, I would say yes. If you say is there any medicine, I cannot tell you. Yes. So that is, I'm sorry I use a word कि like हमने सारी रामायण पढ़ने के बाद पूछा सीता कौन है। नहीं, my intentions are not that. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि होम्योपैथी में अक्सर यही होता है कि यार कोई दवाई बता दे, अब वो कोई दवाई नहीं बताई जा सकती। मतलब कि यू हैव टू कट सच ए सॉरी फिगर सम टाइम समबडी कॉलिंग यू, आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, किसी को यार बड़ी सिरदर्द की दवाई बता दो। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेल कि अब जब हम उसे सिम्टम मुझे कहना छोड़ यार मैं साइडोन ही ले लेता हूँ। It is. But again, there is a misconception about it's a long term. Long term, it becomes only when people come to a homeopath at the last stage. अब आप सब कुछ कर चुके हो, एंड उसके बीच में आपने मेडिसिन भी खा ली, झाड़ फूक भी करा लिया, आयुर्वेदिक भी खा ली, वो भी कर लिया, अपना घरेलू टोटके भी कर लिए, उसके बाद आप जाके दवाई लेने आप होम्योपैथी के पास आते हो। उस टाइम तक जो ओरिजिनल डिजीज़ है वो ओरिजिनल डिजीज़ नहीं रह जाती। इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स डिजीज बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन एंड ऑल दैट द इंटरेक्शन ऑफ दोज मेडिसिन ऑल्सो। सो देन यू नीड टू मतलब आप उसको ना, आपने ये भी सुना कि होम्योपैथी में कहते हैं लोग पहले बीमारी बढ़ती है, ये और कई लोग इसी डर से वो इलाज नहीं कराते कि जिनके बाल झड़ रहे क्या पहले मैं गंजाऊंगा क्या। सो दैट इज़ नॉट द स्टेज। ये उनमें होता है जहाँ पे सप्रेशन हुई होती है। इफ़ देयर इज सम सप्रेशन, जैसे आपको ऑइंटमेंट दे के सप्रेस करते हैं तो वो उसकी जो बाहर निकल के आती है, बिकॉज होम्योपैथी की मेडिसिन इट क्योर्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। और जो बाकी आई मीन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो हम एवरीबडी ट्राइज टू पेसिफाई उसको सप्रेस करने के लिए, तो देयर इज, मैंने यही बताया कि सप्रेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ होम्योपैथी। अब अगर आप सप्रेस्ड चीज़ों के साथ आए हैं तो नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगेगा, वो लगेगा। और उस टाइम पे आपको होम्योपैथी स्लो तो ऐसा तो नहीं है। Yes, so how I mean, once you need to go to the root cause, then you need to take some time. But if you are telling, I mean, there are cases, acute cases, you come to a homeopath with the proper symptomatology, not कि मेरे को ये हो गया, उसके सिम्टम के साथ कि मेरे को लेफ्ट साइड में सिर में दर्द हो रही है, बड़ी जोर की ऐसी हो रही है, आँख के ऊपर भी पानी आ रहा है, you tell this symptom, we will give you medicine and it will work within seconds and minutes. पर आप सिर्फ ये कह रहे हो मेरे सिर दर्द हो रही है, मैं क्या, सिर दर्द की हमारे पास 700 दवाइयाँ हैं, मतलब more than 700 medicine are there which covers headache. So which one to give out of 700? So that is the problem. And that is why we say that we need more awareness among the people to understand homeopathy in a proper manner. Yes, we do have. But again, that is part of a symptom of the disease. It is not your symptom. जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का सिम्टम है वो आपका नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब
ये बैठे हुए हमें साथ में, इनको भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, इनको भी टिंगलिंग हो सकती है। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो दोनों की दवाइयाँ अलग अलग होंगी। अब फिर हम बात कर रहे हैं खाली टिंगलिंग की दवाई लेने, तो टिंगलिंग की दवाई उस पर नहीं बन पाएगी। थोड़ी सी जब तक कम से कम वी हैव मिनिमम knowledge or understanding of your symptomatology of the person, then only we'll be able to help the person much better. Thank you. Sir, sir, please, sir. पहले तो बहुत so insightful and very Thank you very much, sir. Thank you. talk. Really enjoyed listening to you. Thank you, sir. तो मेरे दो क्वेश्चन ये हैं। एक तो हमारे जो ट्रूप्स हैं ये हाई एल्टीट्यूड और सुपर एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड रहते हैं, दैट इज 9000 फीट अबव, 12000 फीट और इवन 18000 फुट पे। तो वहाँ पे एक चीज़ देखा गया है, प्रोलॉन्ग स्टे मतलब 3-4 महीने के बाद वहाँ पे जवानों का हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाता है, 20-21 भी हो जाता है। तो क्या होम्योपैथिक इसमें हेल्प कर सकती है? उसमें क्या होता है, हमें जवान को फिर नीचे ला के छुट्टी भेजना पड़ता है। छुट्टी भेजने का मतलब है कि वो दोबारा आएगा, फिर से एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें मतलब 14 दिन निकल जाते हैं। तो एक तो ये मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमारा एक्लेमेटाइजेशन होता है हाई एल्टीट्यूड में जाने के लिए, उसमें जैसे फर्स्ट स्टेज है 9000 फीट तक 6 दिन होता है, फिर 4 दिन होता है 12000, फिर उसके ऊपर अगर जाना है 15000 तो फिर 4 दिन। तो होम्योपैथिक क्या इसमें हेल्प कर सकती है कि जिससे कि ये ड्यूरेशन कम हो जाए जवान को? मतलब उसमें क्या है कि हमारा ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ जाएगा। अगर हम एल्टीट्यूड एरिया में 6 दिन में काम कर सकते हैं जाके, तो वो अच्छा है, बशर्ते 14 दिन हमें लग जाते हैं अभी जाने में। तो ये मेरा 2 क्वेश्चन था। अगर I mean, it's a very, good question, and let me tell you honestly, for both of your question, the answer is yes. But again, it is not specific for everyone. If we, there are still what we call is एक जीनस एपिडेमिकस निकलती है जो इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द पीपल को हेल्प करती है, तो वी कॉल इट ए कॉमन मेडिसिन। हम उसको बिना पूछे आंख बंद करके भी दे सकते हैं। आफ्टर डूइंग द कलेक्टिंग द डाटा कि हाउ मेनी पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैव बीन बेनिफिटेड बाय विच मेडिसिन। ठीक है, एक तो दैट इज़ अ क्लाइमेटिक कंडीशन। उस क्लाइमेटिक कंडीशन में आपका थ्रेशोल्ड बॉडी की क्या है, इनका बॉडी का थ्रेशोल्ड क्या है, इनका थ्रेशोल्ड क्या है, वो डिफ़र करता है। अब आपके जवान, एक जवान आप 2-3 किलोमीटर भागता है, उसको सांस चढ़ जाता है। दूसरा जवान है वो 5 किलोमीटर भागता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो दोनों जवान, पर दोनों की बॉडी की थ्रेशोल्ड अलग है। बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, बॉडी की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसिडर। पर आपका जो वो है ना क्वेश्चन, उसमें हम वी कैन मेक अ स्टडी ऑन दोज पीपल एंड गिव मेडिकेशन। अब जैसे अब सपोज 5-7-10 मेडिसिन निकलेंगी, उन 5-7 मेडिसिन के 10 मेडिसिन निकलने के बाद उनको अगर हम एनालाइज करें, देन वी फाइंड कि हाउ मेनी पीपल वर गिवन दिस मेडिसिन ओनली। अगर हमको 10 में से 8 लोगों को वो मिले, देन वी कैन कंसिडर इट यस इट मेडिसिन। जो आपका क्वेश्चन है वो उसका भी आंसर इसमें है, बट क्योंकि वो डायबिटिक न्यूरोपैथी इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम, पर जो इनका हाई एल्टीट्यूड की बात है उसमें आंसर, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई मीन टू से, तो देन इट कैन बी डन। और वो अगर 10 में से 8, श्योर सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, ये जो जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, एक प्रिडिक्टिव सिनर्जी की नई टाइप की आई है, तो ये नॉर्मल होम्योपैथी से कितनी डिफरेंट है और इन कितनी इफेक्टिव है? देखो, जो पहली बात है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अलग विधा है जिसका सिस्टम होम्योपैथी से डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट वाज स्टार्टेड एज अ इलेक्ट्रोपैथी। उनकी 199 दवाइयाँ हैं टोटल, वो उनके पूरा रिपर्टायर उनका उसी में है। और जो प्रेडिक्टिव आपकी बात करो या सिनर्जी वाली बात करो, देज आर मेथडोलॉजीज ऑफ अडॉप्टेड बाय डिफरेंट डॉक्टर्स टू ट्रीट द पेशेंट्स। जो उनमें जो प्रेडिक्टिव है वो डॉक्टर विजयकर ने स्टार्ट करा था, जहाँ पे इट वाज कंसीडर्ड दैट पहले बॉडी में जो सप्रेशन की बात जब हम कर रहे हैं, सप्रेशन की लेयर्स को देखते हैं। According to him, there are 7 layers of separation from childhood to और your adult age में। तो जब उसके सिम्टम आने शुरू हुए
तो वी नीड टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर सिम्टम एट दैट टाइम एंड गिव मेडिसिन, देन इट वर्क्स. सिनर्जी का डॉक्टर राजन शंकरन का है, ही हैज़ गॉट अ डिफरेंट अप्रोच. वो आपके बेसिक बैकग्राउंड तो सबकी वही है, मेंटल थॉट प्रोसेस ही है. अब आपका किस राग में रुचि है, सपोज आप सो उन्होंने उसको फर्दर डेवलप करा है. सो दैट इज़ अ सिनर्जी फ्रॉम देयर. तो जो चीज़ रहती है बाद में अल्टीमेटली होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है. पर अब जैसे सपोज यहाँ से हमको कैनॉट प्लेस जाना है, ही नोज वन वे, ही नोज अनदर वे, ही नोज अनदर वे. पहुँचते तीनों कैनॉट प्लेस पहुँच रहे हैं. एक जना जल्दी पहुँच रहा है, एक थोड़ा देर से पहुँचेगा, वो थोड़ा उससे देर से पहुँचेगा. अब वो ही इज़ कम्फर्टेबल विद हिज अप्रोच. मेरे को कौन सी जल्दी पड़ी है, उसको बहुत जल्दी पड़ी है, तो ही टेक्स दैट. तो इट इज़ इंडिविजुअलाइजेशन जो उसकी है. ये अप्रोचेस भी अलग अलग बनाई हैं लोगों ने, कि इनको जो कंफर्टेबल लगा उन्होंने फिर वो शुरू कर दिया. ऐसे ही आप ये देख लो, हमारे जो जितने भी सेंट्स हैं, किसी एक सेंट ने कोई गलत बात कही है? नहीं कही ना. तो फिर इतने सारे सेंट क्यों हो गए? सिंपल एज दैट. People, you said that people come to you after testing all other allopathic, other forms of medicines. Since you are a specialist in this homeopathy, so my question is, what are all the disease for which people can approach you directly without going anywhere else? वेल, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए. If people start coming to a homeopathic doctor right from beginning, I can assure you and guarantee you, far less number of people will have a disease for which one has to go to a hospital. If this happens, but this does not happen. I said in the beginning, every system has got its efficacy, every system has got its limitation. Homeopathy also has a limitation. When it is a surgical condition, homeopathy cannot do anything. Homeopathy can help in healing, but you need to, do the plaster. You need to do the, those kind of thing. So इसमें कोई हमारा क्लैश नहीं है किसी के साथ. आपने पूछा कौन सी डिजीज? यस, राइट फ्रॉम बच्चों के दांत निकलने से, कैलकेरियाफॉस आपने भी यूज़ करी होगी अपने घर पे, सुनी भी होगी, देखी भी होगी, सबने करी हुई है. जिसको नहीं पता उसको भी होम्योपैथी को कम ये तो पता ही है. तो उससे लेके अगर आप बाद में पीपल दोज हु आर हैविंग कैंसर, और जैसे मैंने अभी ये केस दिखाया मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का, जिनको मैंने बताया कि वहाँ पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट इज़ सेड कि इट इज़ इनक्योरेबल डिजीज, मतलब इसका ट्रीटमेंट ही नहीं, वो ये भी नहीं कहते इनक्योरेबल, कहते इसका इलाज ही नहीं है. तो उनमें भी होम्योपैथिक इफेक्ट दिखा रहे. मैंने अभी डॉक्टर साहब से मैंने एक बड़ी रिक्वेस्ट करके कहा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी वी आर फाइंडिंग गुड रिजल्ट्स. जैसे ADHD के केसेस हैं, ऑटिज्म के केसेस हैं, उनमें वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स. तो ये कोई ऐसा कोई हमारी आपस की वो नहीं कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है. हमारी सब पैथीज अच्छी हैं अगर उसको सही ढंग से यूज़ किया जाए. तो जहाँ पे भी मिसयूज़, अगर चाहे होम्योपैथी भी मिसयूज़ हो रही तो वो भी गलत है, एलोपैथी मिसयूज़ हो रही वो भी गलत है. अब मैंने बताया कि आपको वो दवाई ये वाली खाने के लिए बोली कि 3 पुड़ियाँ खानी है, उसके बाद आप 3 पुड़िया से ठीक हो गए, तो उसके बाद आप मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं, वही पुड़िया खाई जा रहे हो. अरे गेट पॉइंट. सेम इज द केस, जो जितनी आपकी ये वो होती है ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ को छोड़ के जो लिखा होता है कि अब लोगों ने अपने आप ही एंटीबायोटिक लेने शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल. एम आई राइट सर? जो खाते हैं वो, तो ये ऐसा कुछ नहीं, लेवल करने वाली सिचुएशन नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिस्टम. उनके हर एक सिस्टम की अपनी जो गरिमा है और मर्यादा है उसको देखना और समझना ज़रूरी है. वेल, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. यूजुअली मैंने भी कहा होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली. एंश्योर्स हेल्थ सेफली इज़ नॉट द वर्ड विच कैन टेकन एज अ गारंटी. अगर आप 10 पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, 10 में से 9 पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और एक को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो भी उसका रीज़न कुछ और रहा कि उसने कंप्लायंस ऑफ द ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है, कि जैसे उसको डोज बताया वैसे नहीं खाई, या उसके साथ डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करा. अगर आपने मेरा लेक्चर पूरा ध्यान से सुना, मैंने उसके साथ हर जगह लिखा कि होम्योपैथी
along with diet, along with this, सब चीज़ों का together to get the best of results. One thing alone, it has its own limitations also. Thank you. This is for everyone. As I'm telling, I am a cancer surgeon. See, when we are discussing these things, there is now coming the precision medicine. Like everyone's doubt, the right person, right disease, right medicine, in right time. This is the precision medicine. That's why the conception of the every person is that like homeopathy, comparing the allopathy, comparing Ayurveda, you should not compare. This every procedure has started with some evolution. Like we cannot compare like son with a father, because I know the computer, this my father is outdated. The things people are comparing like the allopathy, homeopathy, Ayurveda, all these things. Now coming the integrated medicine, over the years there are a lot of comments from the allopathic, like people are thinking the instant cure, instant day, like someone is asking, there is a medication, like I want instant cure. That's why people come to like allopathic decision, but simultaneously failed. Like chronic diseases, they don't know, like symptom based. Why Ayurveda over like coming these things, evidence based? What we are telling like experienced based is replaced by the evidence based. I will tell my experience. My experience has been my evidence. But whether this evidence has been fruitful for each patient, then we have to keep data. Like Gupta sir is telling, like I will keep my experience. I was doing very like laparoscopic surgery in oncology. This takes long time. I developed the tennis elbow, means this is the tendinitis. When I taking this is a tennis elbow, like frozen shoulder. This I tried all the like analgesics in my medicine, like I know nothing cured. Then I discussed with one of my sister who is in a homeopathy man. She told me, take this medicine, you will be cured. And I took that medicine and it is cured. When I asked, tell me the action, what you have given and how it acts, no, I cannot explain. That is the irony, but this cures. What Gupta sir told, I cannot give this is the drug I can prescribe, that diabetic neuropathy will be cured. But simultaneously when you will ask me, that I am giving this medicine, this pathway is blocked, this is this is the allopathy we are giving. That's evidence based. But simultaneously evidence based is failed. One example I am giving with this, I have seen one rectal cancer patient. The rectal cancer, you know, this is the anal cancer, extensive disease. When he approached me, I told there will be no surgery. Usually we do the surgery, then chemotherapy, radiotherapy, it will be cured. Nothing will happen, you go for the chemotherapy because surgery has no role. It's already extensive. He told that chemotherapy people will die. He got the answer from like some neighbors tell chemotherapy will die. He went and he took some route like Ayurvedic concept. After 5 years he has been cured. I have seen my experience. How I will prove it? This is also evidence. When there is no evidence, we are telling the evidence-based medicine. That's why always there is a evolution. Each patient, each disease, timing, everything counts. And that becomes with experience, with the patients. But patience has no patience. Patient has no patience to explain that thing. That's why we are facing so many complications, questions, and all these things. But time is coming. The integrative medicine, like sir was telling, all AIMS has been given the responsibility to develop. Patient should have the right to choose the medication. We give the options. Like someone is coming long time to us, we are not curing, there is the options like homeopathy is there, Ayurveda is there, this is there. But this is, we have to make the evidence based. Now, rheumatoid arthritis not cured by the allopathic, but in Ayurveda, they are coming with like the medication, clinical trials approved, and rheumatoid arthritis is cured.
that will be gradually coming with the new medication. The same thing for the cancer, coming a lot of things. Curcumin like a haldi, that is derivative from curcumin from the haldi age old. People are not using because of the fast food habits. Anti-inflammatory. All disease starts with inflammation. You will must be agreeing. This curcumin I tried with 89-year-old patient. I don't give radiotherapy. I don't do the surgery. I give curcumin, 89 years, tonsillar cancer cured. This we have to make it evidence-based to convince people. This is like we are taking it, this is the research thing coming like homeopathy, Ayurveda, Unani, even Yoga. If you'll see names, All India Institute of Medical Science, Delhi, having the cardiology department above the Yoga, they are giving and they have evidence-based, that is been definitive evidence that we will decrease the cardiac myocardial infarction. If I am giving that after treatment, that will be better. That's why though you people are having your options, how we will that's why we are doing the integrative medicine coming in a big way. NIMHANS, but you know the neurological disease clearance in Bangalore, established. Now all AIMS given the responsibility to make it evidence-based our traditional medicines because age old. Antibiotics came in 1935 with penicillin. Before that, the infection was controlled. Like Sarva is telling a lot of evidence in our also Puran that is there. The civilization survived over the years, means that traditional medicine has the value. We have to respect. But we have to convince like you people to make it evidence. Yeah, this is the evidence based, we can do it here. Thank you so much for giving this opportunity to share. Well, thank you so much. It was so engrossing. I know we got plenty of questions like Professor Suresh had said. Tha to 45 minutes ka, but it ended more than an hour or so. So anyway, at the crux of it, a layman like me understands only one thing, that not one size fits all. And with such a important question and a point that Lieutenant General Chadha ji just spoke about, I think हमारे राष्ट्र के जितने भी जवान हैं जो सीमा पे हमारे लिए इतना बलिदान देते हैं और उनके उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया और एक इन्वेस्टिगेटिव स्टडी के तौर पे इसको शुरू किया जाए। और मेरे ख्याल से OVHIMS और मैं जिस फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ मिल के आप उसमें आपके साथ काम करना चाहेंगे और आप सब लोग आए। आई मीन आई फील वेरी नाइस, वी हैव एक्चुअली गॉन more than an hour over it. But thank you so much and have a great evening. Thank you so much, sir.